نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ریویژن لیکچر بائی نور ہدایت. آپ سب کو پرانی بیسک گرامر کورس کے ریویژن لیکچر میں خوش آمدید ہے. آج ہم جملہ اسمیہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. مرکب دو مفرد الفاظ کا بامعنی مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. یعنی مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. مرکب کی دو اقسام ہیں. مرکب تام. مرکب تام ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. جملہ دو طرح کا ہوتا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے. لڑکے کی کتاب، یہ کتاب، کتاب میں، یہ سب مرکب ناقص ہیں. مرکب تام وہ جملہ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ کی ابتدا کی ہوئی ہے تو ہم اسی کو اسٹڈی کریں گے آگے مزید. اس کے دو مین جز یا اجزاء ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں: مبتدا اور خبر. مبتدا سبجیکٹ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اور خبر وہ حصہ جو مبتدا کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے، یا وہ اسم جس کے ذریعے اطلاع دی جائے خبر کہلاتا ہے. مبتدا اس کی وسعت کیپیسٹی معرفہ ہوتی ہے اور اس کی اعراب یعنی اسٹیٹس رفع ہوتا ہے. اور خبر اس کی وسعت نکرہ اور اس کا اعراب رفع. عدد اور جنس میں ان میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے. جیسے مرکب ناقص کی چار اقسام ہیں. مرکب توصیفی یعنی چار طرح کے مرکبات ناقص ہیں جو ہم اسٹڈی ویسے کر چکے. مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری. مرکب تام یا جملہ مبتدا اور خبر پر ہوتا ہے، کنسسٹ کرتا ہے. مبتدا معرفہ اور رفع ہوگا اور خبر نکرہ اور حالت رفع ہوگی. حامد موجود. حامد کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، واحد ہے، حالت رفع میں ہے اور جنس اس کی مذکر ہے. موجود حامد یہاں پر مبتدا بن رہا ہے. موجود نکرہ اسم ہے، حالت رفع میں ہے، واحد ہے، مذکر کے لیے ہے، اس کی خبر بن رہا ہے. حامد موجود ہے. یہ حامد موجود ہے. اب مبتدا کون کون سے اسماء جو ہے مبتدا بن کر آ سکتے ہیں. ہم نے مبتدا کی دو مین چیزیں ہیں وہ تو اسٹڈی کر لی کہ مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے اور مبتدا کا حالت رفع ہونا ضروری ہے. اب وہ کون سے ایسے اسماء ہیں جو معرفہ بھی ہیں اور حالت رفع میں ہیں اور وہ مبتدا بن سکتے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہیں. اسم علم. اسم علم معرفہ ہے، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پراپر نیم معرفہ ہوتے ہیں رفع میں.
हामिदुन तालिबुन। अब देखिए हामिदुन इसम अलम है, हालत रफा में है यहाँ पे, और वाहिद है मुज़क्कर के लिए है। तालिबुन इसके साथ इसकी खबर आ रही है, नकिरा है, हालत रफा में है। और अब मुज़क्कर के लिए आ रही है, ठीक है। हामिद एक तालिब इल्म है। इसम इशारा, अच्छा इसम इशारा, इसको देख लेते हैं। जिस लफ्ज से किसी जानदार या बेजान चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे इसम इशारा कहते हैं। उर्दू में हम इसके लिए ये और वो का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में दिस और दैट यूज किया जाता है इशारे के लिए, लेकिन अरबी में पूरा एक चार्ट है इसमें इशारा का, करीब और बईद। करीब और बईद, बईद यानी दूर का, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसकी जो तमाम अस्मा इशारा हैं ये मार्फा होते हैं, ठीक है, इसलिए ये मुब्तदा के स्टेटस पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल है हाजा किताब। अच्छा, जो इसम इशारा है वाहिद और जमा के ये मबनी होते हैं, मुसन्ना के मोरब होते हैं, यानी तीन अरबी हालतों में से दो अरबी हालत को अडॉप्ट करते हैं। हाजा वाहिद मुजक्कर के लिए इशारा है, करीब का है। और किताबुल, ये किताबुल है, खबर है दिन की रात, ठीक है। किताबुल, हाजा किताबुल। इसम इशारा के बाद आपको जब भी कोई नकरा इसम या कोई मुरक्कब मिल जाए तो आपका इसम इशारा वहाँ पर मुब्तदा बनता है, और वो नकरा इसम या मुरक्कब कोई भी उसके लिए उसमें खबर बनता है। इसका तर्जुमा होगा ये एक किताब है। आगे देखिए, इसम ज़मीर, ये भी मुब्तदा बनकर आ सकते हैं। इसम ज़मीर ये क्या होते हैं, किसी भी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर को नाम कहा जाता है। वो लफ्ज जो किसी जानदार या बेजान चीज के नाम के बदले में इस्तेमाल हो इसम ज़मीर कहलाता है। अस्माए ज़माइर मार्फा होते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो देखिए, हुआ तबीबुन है। अच्छा, अस्माए ज़माइर तीन तरह के हमने चार्ट में पढ़े थे, गायब के लिए, हाजिर के लिए और मुतकल्लिम के लिए। जो गायब के अस्माए ज़माइर हैं वो आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आ जाते हैं, जबकि जो हाजिर और मुतकल्लिम के ज़माइर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अ, आकिल के लिए आते हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि गायब के ज़माइर आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आ सकते हैं, ठीक? आगे देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन है वो एक डॉक्टर है। हुआ तबीबुन, हुआ इसम ज़मीर जो है ये गायब के लिए है, वाहिद मुज़क्कर गायब, और तबीबुन नकरा से हमारे इसके बाद तो ये इसकी खबर बनता है। मोरक पिलाने से होता कि जब हमने सीखा नकरा इसम को अलिफ लाम लगाकर मार्फा बनाया जाता है, वो मोरक पिलाने से कहलाता है। और ये मुब्तदा बन सकते हैं क्योंकि फिर इनकी कैपेसिटी मार्फा हो जाती है। अल वलदु सालिहुन, अल वलदु मोरक पिलाने से है, हालत रफा में है, और ये वाहिद मुजक्कर के लिए, वाहिद है मुजक्कर के लिए है, यानी वलद सॉल, अल वलदु सॉलिहुन। सॉलिहुन नकरा इसम है, हालत रफा में है, वाहिद है मुजक्कर के लिए है। ट्रांसलेशन, लड़का नेक है। अभी यहाँ तक देखिए हमने देखा, यहाँ तक हमने मुफरत का इस्तेमाल सीखा है, यानी मुफरत
मुब्तदा और मुफरदी खबर है ये हमारे पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने मुफरद खबर और मुफरद मुब्तदा का इस्तेमाल सीखा है। अब हमारे पास हम आगे जाएंगे तो मैं आपको आगे इसको बताती हूँ। इस्म मौसूल, इस्म मौसूल क्या है इसको देख लेते हैं। ऐसा इसम मार्फा जिसके मायने वाज़िह नहीं होते और इसका मफहूम बाद में आने वाले जुमले से मुकम्मल होता है, जो कि इसका सिला कहलाता है। इसम मौसूल ऐसा इसम है जो दो जुमलों में कनेक्शन का काम करता है। हमने अस्माए मौसूल पढ़े थे, हमने पूरा चार्ट सीखा था इसका, वाहिद, मुसन्ना और जमा, और इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग आते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, अल्लज़ी हुआ तबीबुन, अल्लज़ी इसम इशारा है, वाहिद है, मुज़क्कर के लिए आता है। हुआ तबीबुन इसकी खबर है, इसकी सिलतुल मौसूल है, सॉरी खबर नहीं, सिलतुल मौसूल है। हमने सीखा था कि सिलतुल मौसूल तीन तरह से आ सकता है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया और शिब्ह जुमला। शिब्ह जुमला में हमारे पास ज़र्फ मुज़ाफ इलैह और जामिद जुमला आ सकता है। अब यहाँ पर हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, मुब्तदा बन रही है, तबीबुन नकरा इसम, हालत रफ़ा में इसकी खबर बन रहा है। तो ये जुमला इस्मिया अल्लज़ी के लिए सिलतुल मौसूल बन रहा है। अब इससे मौसूल सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ पर मुब्तदा है। इब्नु खालिदिन, इब्नु मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इब्नु खालिदिन मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इब्नु मुज़ाफ़, खालिदिन मुज़ाफ़ है, हालत जर में। अब यहाँ देखिए, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी खबर का स्टेटस लिए हुए है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमने खबर मुफरत पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर अब मुरक्कब आ गए खबर की जगह, ठीक? वो जो डॉक्टर है, खालिद का बेटा है, वो हमने सीखा कि खबर जो है वहां पर मुफरत की जगह मुरक्कब भी आ सकता है। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी क्या है? दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करता है, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। इसके दो जुज हैं, दो मेन पार्ट्स हैं, सिफ्त प्लस मौसूफ। अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफ्त बाद में आती है, जबकि उर्दू ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो पहले सिफ्त और फिर मौसूफ आता है। अब सिफ्त और मौसूफ क्या है? मौसूफ किसे कहते हैं? जिस किस्म की खूबी या खामी बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं, और जो इसम खूबी या खामी बयान करता है वो सिफ्त कहलाता है। मौसूफ लीडर होता है, ठीक है। अब ये क्या बात है, यानी सिफ्त के जो एराब है वो मौसूफ को देखकर बदलता है, ठीक है। तो मौसूफ लीडर हुआ, मौसूफ जो है सिर्फ उसको अपने मौसूफ को फॉलो करेगी, सिर्फ एराब में मौसूफ को फॉलो करेगी। मुरकब इजाफी, मुरकब इजाफी क्या है इसको देख लीजिए। दो इस दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाए, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। इस तरह इनका आपस में मल्कियत और मालिक वाला रिलेशन बन जाता है, ठीक है। जिस इसम का ताल्लुक कायम किया जाए उसे मुजाफ कहते हैं, और जिस इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। नोट कीजिएगा, जिस इसम का ताल्लुक कायम किया जाए उसे मुजाफ कहते हैं, पोजेस्ड कहा जाता है, और जिस इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाए
यानी जिस इसम के साथ ताल्लुक कायम किया जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं, मुज़स्सर कहते हैं। मुजाफ, इसके लिए रूल था कि ये हमेशा बगैर अल्फ के होता है और इसका इराब हल्का होता है, यानी नो आई नो कमीन। जबकि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी में कौन लीडर है? इसमें मुजाफ लीडर होता है और मुजाफ इलैह का इराब मजरूर फिक्स है। मुरक्कब तौसीफी जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अभी हमने मुफरद से आगे की तरफ जब स्टेप बढ़ाया तो हमने पहले देखा है कि अब मुरक्कबात में से मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। इसी तरह जुमला इस्मिया में मुरक्कब इजाफी मुब्तदा और खबर बन सकते हैं। ठीक है, अब मुरक्कब तौसीफी और इजाफी को याद रखना है हमें कि ये मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी बन सकते हैं। आगे चलते हैं। मुरक्कब इशारी, ऐसा मुरक्कब जिसमें इसम इशारा का इस्तेमाल हो मुरक्कब इशारी कहलाता है। ठीक है, यहाँ जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हो मुरक्कब इशारी कहलाते हैं। इसके दो अज्जा होते हैं, इशारा और मुशारे में। ऐसा इसम जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो इसम इशारा कहलाता है और जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारे अलैह कहते हैं। ये भी मार्फा होते हैं। ठीक है, तमाम अस्मा इशारा हमने पढ़ा मार्फा होते हैं। ये मुब्तदा भी बनते हैं। अच्छा, मुशारुन इलैह अगर मुरद बिलाम इसम ना हो तो फिर वो वहाँ पर इशारा मुब्तदा और वो उसके बाद अगर आपको नकीरा इसम मिल रहा है तो खबर होगी। ठीक है, ये हमने बात याद रखनी है। और अगर आपने इसम इशारा के बाद मुरद बिलाम इसम मिल जाए तो फिर वो आपका मुरक्कब इशारी कहलाता है। ये मुब्तदा बनते हैं। मुरक्कब इशारी खबर भी बन सकते हैं अगर अस्मा इस्तिफाम मुब्तदा बन जाए। अच्छा जी, अब ये कंडीशन है, इसको याद रखना है। क्योंकि हमने मुरक्कब इशारी का लेक्चर पढ़ते हुए पढ़ा था कि ये सिर्फ मुब्तदा बनते हैं, लेकिन अभी हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि ये खबर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि अगर इनसे पहले कोई आपको इसम इस्तिफाम मिल जाए तो फिर ये मुब्तदा बन जाते हैं। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी यानी हरफ जर और मजरूर इसम का मजमूआ मुरक्कब जारी कहलाता है। हरफ जर क्या है कि जो किसी इसम को हालत जर में ले जाए हरफ जारा कहलाते हैं। ये हमने स्टडी कर ली है। अरबी जुबान में कुछ ऐसे रूप हैं जो अस्मा को हालत जर में ले जाते हैं। मुरक्कब जारी के दो अज्जा हैं, हरफ जर और मजरूर इसम। अब मजरूर इसम की जगह पर आपको मुफरद इसम भी मिल सकता है और आपको मजरूर इसम की जगह पर मुरक्कब तौसीफी भी मिल सकता है, मुरक्कब इजाफी भी मिल सकता है और मुरक्कब इशारी भी मिल सकता है। अच्छा, जब ये हरफ जर के बाद आएंगे तो हमेशा उनका स्टेटस देखें और उसकी वजह से ये मजरूर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हरफ जर और उसके बाद में आने वाले मजरूर मुफरद असम हो या ये मुरक्कबात में से कोई भी मुरक्कब हो। ठीक है, हरीफ जर के बाद कोई भी मुफरद इसम मिले या कोई मुरक्कब मिले तो फिर भी वो जुमले में खबर का स्टेटस ही रखेंगे। ठीक है, हरफ जर कभी भी अपने मजरूर इसम के साथ मिलकर मुब्तदा का स्टेटस नहीं ले सकते। जर्फ, जर्फ क्या है तो देख लीजिए। अमामा, खल्फा, कबला, इंदा, ये जर्फ कहलाते हैं। ये मबनी पर फतहा होती है। ठीक है, और इनके बाद मुजाफ इलैह आता है। हमेशा और हमने पिछले अपने लेक्चर में जब पढ़ा था तो अमामा, खल्फा, कबला, इंदा पढ़ा था। और ये पाकिस्तान में एक नया ज़र्फ आया मा आ, साथ। ये मुजाफ बनते हैं, जार मजरूर की तरह काम करते हैं। मुरकब जारी, मुरकब जारी खबर बनता है। ठीक है, जार मजरूर को अरबी जुबान में शिबह जुमला भी कहते हैं।
जब खबर मौजूद हो तो इसको मुतल्लिक़ खबर कहते हैं। अगर जार मजरूर या ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह से शुरू हो, अगर जुमला जार मजरूर या ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह से शुरू हो तो वह खबर मुक़द्दम कहलाता है। इसम मौसूल, इसम मौसूल हमने इसको डिटेल स्टडी किया था। इसम मौसूल क्या है? ऐसा इसम मारफा है जिसके मायने वाज़िया नहीं होते और इसका मफ़हूम बाद में आने वाले जुमले से मुकम्मल होता है, जो कि इसका सिला कहलाता है। अब सिलातुल मौसूल, सिला का मतलब है चेन, यानी जंजीर, ये आपस में जोड़ के रखता है। इसम मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता, जुमले में कभी भी अकेला स्टेटस नहीं रखेगा, ये हमेशा अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर स्टेटस रखता है। ठीक है, अब सिलातुल मौसूल की जगह पर कौन कौन से जुमले आपको मिल सकते हैं? जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया और शिब्ह जुमला। अब शिब्ह जुमला में आपको जार मजरूर या ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह मिल सकते हैं। ठीक? यानी सिलातुल मौसूल को याद रखना है, तीन तरह से आ सकता है, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया और शिब्ह जुमला। इसम मौसूल प्लस सिलातुल मौसूल पांच तरह से जुमले में आता है, यानी इसके पांच स्टेट किसी भी इस जुमला इस्मिया में ये पांच तरह का स्टेटस कैरी करता है। नंबर वन, सिफ्त, मौरफ बिन नाम इसम के बाद इसम मौसूल आए तो वो सिफ्त बनता है। फिर मुज़ाफ़ इलैह, किताबुल्लज़ी, किताबुल मुज़ाफ़, नो अल नो तनवीन, अराब हल्का है, देखिए अल भी नहीं, अल्लज़ी और इसके साथ जो इसका सिलतुल मौसूल होगा ये अ, इस मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुज़ाफ़ इलैह बन जाएगा। ठीक है, इस जो की किताब, क्योंकि हमने सीखा इस मौसूल का तर्जुमा जो या जिसके साथ किया जाता है। अच्छा, ये मजरूर की पोजीशन पर भी आ सकता है, यानी जर के बाद इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिले तो फिर ये मजरूर इसम हो जाएगा यहाँ पे। मुब्तदा भी बनकर आ सकते हैं, खबर भी बनकर आ सकते हैं। अब खबर ये किन कब कब बनेंगे? जब भी अस्माए अलम, इसम ज़मीर और इसम इशारा के बाद इसम मौसूल आए तो वो खबर बनता है। मुश्तरक अस्माई मौसूला, चलिए आपके लिए आज नई टर्म है क्योंकि हमने अब तक सिंपल पढ़े थे। तो मुश्तरक अस्माई मौसूला कौन कौन से हैं? माँ, जो, गैर आखिरी के लिए, और मन, जो आखिरी के लिए। इनमें अदद और जिन्स की कैद है। माँ गैर आखिरी के लिए आता है, इसके बाद आपको वाहिद इसम भी मिल सकता है, मुसन्ना या जमा, और वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुज़क्कर मुअन्नस भी, इसलिए मुश्तरक कहा जाता है कि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आ सकता है और कोई भी अदद हो सकता है इस इसम का। ठीक है, मन काफिल के लिए आता है और ये भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है एट ए टाइम, और अदद भी कोई हो सकता है, वाहिद भी आ सकता है, जमा भी, मुसन्ना भी। तो इन दो को लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ इस्तिफ़हाम क्या है? इस्तिफ़हाम हमने सीखा था कि जब भी हमें किसी से कोई सवाल करना हो तो हम कुछ ऐसे अल्फा अस्मा इस्तेमाल करते हैं कि जो जुमले में अ, सवालिया मफ़हूम पैदा करते हैं। ठीक है, अब जुमला इसमें हमें इस्तिफ़हाम पैदा करने के दो तरीके सीखे थे, हरूफ इस्तिफ़हाम के जरिए और अस्मा इस्तिफ़हाम के जरिए। हरूफ इस्तिफ़हाम क्या होते हैं? जिस जुमले का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसी में हरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो हैं, आ और हल। इनका मीनिंग है क्या। जैसे आ ज़ैदुन सालिहुन, क्या ज़ैद नेक है, या हल ज़ैदुन सालिहुन, क्या ज़ैद नेक है, दोनों तरह से आ सकता है। अस्मा इस्तिफ़हाम, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वजाहत मतलूब होती है, यानी जिन सवालों के जवाब में वजाहत मतलूब हो उनमें अस्मा इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम, अच्छा, हरूफ इस्तिफ़हाम के आने से जुमले में कोई एराबी तब्दीली नहीं होती और हरूफ इस्तिफ़हाम जुमले के शुरू में आते हैं। तो पॉइंट लिख लीजिएगा। इसमें इस्तिफ़हाम की स्टडी करते हैं। पहला है माँ और माजा, मायने क्या,
व्हाट जुमले में ये मुब्तदा बनते हैं और ये इसम है। मन, कौन, हु जुमले में मुब्तदा और खबर बनते हैं और ये भी इसम है। कैफा कैसा, हाउ खबर, ये जुमले में खबर बनकर आते हैं और ये इसम है। आईना कहाँ, वेयर खबर, ये जुमले में खबर बनते हैं और ये ज़र्फ मकान है। अब ज़र्फ मकान क्या है कि इसमें हम जगह के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है। ऐसे इस्तेफाम जो ज़मान या मकान हो वो जुमले में खबर बनते हैं। अब ये ज़र्फ मकान है, ठीक। इसमें जगह के बारे में हम बात पूछ रहे हैं, ठीक है। जब किसी जगह के बारे में सवाल करना होगा तो आईना, मता कब। अब मता क्या है कि इसमें वक्त और टाइम का मायने आ रहा है, ठीक है, वक्त पूछा जा रहा है, इसलिए ये जुमले में खबर बनेगा। मता कब, व्हेन खबर बनेगा। ज़र्फ ज़मान यानी वक्त पूछा जा रहा है ना, ज़माना वक्त टाइम। अय्याना कब, व्हेन खबर बनता है जुमले में, ये भी सब ज़मान है। आगे देखते हैं। अन्ना कहाँ, वेयर जुमले में खबर बनकर आते हैं और ये ज़र्फ मकान है। अय्यु अच्छा, जो ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान है ये जुमले में खबर ही बनकर आते हैं, ठीक है, ये हमेशा खबर बनेंगे। और अय्युम कौन सा, विच मुब्तदा बनकर आता है। अच्छा ये अय्युम जो है ये इसका जो बाकी जितने अस्मा इस्तिफाम है वो मबनी अस्मा है, ठीक है। अय्युन जो है ये एराब बदलता है अपना, ये जुमले में ये मुजाफ बनकर आता है, ठीक है। और ये सिर्फ ज़र्फ है। कैफा कितना, बहुत से, हाउ मैनी हाउ मच, और ये मुब्तदा या खबर बनते हैं और ये इसमें है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमने देखा था कि हर जर का अस्मा इस्तिफाम के साथ हमने इस्तेमाल सीखा था। ई, इला, मिन, ली, अन, ये वो हरफे जा रहा है जिनके साथ अस्मा इस्तिफाम देखकर मिलते हैं। फीमा, ठीक है, किस चीज में, इला अइना कहाँ की तरफ, इला मता कब तक, मिम्मा इस चीज से, मिन आईना कहाँ से, लिमा क्यों, लिमन किसकी किस लिए, अनमा तो ये बन जाएगा अनमा, ठीक है, किस चीज की निस्बत से या किसके बारे में। तो ये हमें याद रखना है कि इला मिन नी अन, ये वो हरफ़े जाना है जिनके साथ हमें अस्मा इस्तिफाम का इस्तेमाल मिलता है। आगे देखते हैं। ये रिवीजन पॉइंट्स इनको नोट कर लीजिए। मुरकबे जारी के दो अज्जा होते हैं, दो अज्जा या दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा जर और दूसरा हिस्सा मजरूर। मुरकबे इजाफी के पहले हिस्से जुज को मुजाफ कहेंगे और दूसरे को मुजाफ इलैह कहेंगे। मुरकब इशारे का पहला हिस्सा इसम इशारा कहलाता है और दूसरा मुशाबह अलैह कहलाता है। मुरकब तौसीफी के पहले हिस्से को मौसूफ कहते हैं और दूसरे हिस्से को सिफ्त कहते हैं। मुब्तदा इसम अलम हो तो खबर जिन्स यानी और अदद में मुब्तदा की पैरवी करेगी। मुब्तदा अगर इसम इशारा हो तो मुब्तदा जिन्स और अदद में अपनी खबर की पैरवी करेगा। मुब्तदा अगर ज़मीर हो, इसम ज़मीर हो तो मुब्तदा जिन्स और अदद में अपनी खबर की पैरवी करेगा। मुब्तदा मौरफ पे लाम इसम हो तो खबर जिन्स और अदद में मुब्तदा की पैरवी करेगी, ठीक है। इसम अलम और मौरफ पे लाम इसम का सेम रूल है कि खबर जो है वो पैरवी करेगी मुब्तदा की, और इसम इशारा और इसम ज़मीर का सेम रूल है कि मुब्तदा जिन्स और अदद के लिए अपनी खबर की पैरवी करेगा, ठीक। आगे एक्सेप्शंस क्या हैं।
मुब्तदा इसम अलम यानी मुज़क्कर और मुअन्नस मुश्तरक दोनों आ जाए अगर आपके पास जुमला इसमिया में, तो खबर मुज़क्कर होगी, यानी मुज़क्कर प्रोमिनेंट होगा। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है, और गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है। जब मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। मुरकब तौसीफी में अगर मौसूफ जमा गैर आकिल हो तो सिर्फ आमतौर पर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन जमा मुअन्नस और जमा मुकस्सर भी आती है। यहाँ तक आज हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर किसी रिवीजन लेक्चर में, बल्कि नेक्स्ट हमारा जो आने वाला लेक्चर 19 है उसमें हम आपसे दोबारा आपके साथ रब्ता होगा, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।